حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا زندگی جینے کا سامان ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا زندگی جینے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ نیک بیوی۔ ہاں نیک بیوی، بیوی تو مل جاتی ہے مگر نیک بیوی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بیوی تو سب کو ملتی ہے مگر نیک بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اب مرأۃ صالحہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں پہچان بتائی ہے میری ماں بہنوں، سننا، یعنی دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کی پہچان نبی نے یہ فرمائی ہے کہ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، سمجھ لو وہ نیک بیوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب شوہر کسی بات کے لیے اس کو بلائے تو وہ حاضر ہو جائے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ شوہر اگر باہر چلا جائے کمانے کے لیے یا کسی کام سے تو وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یعنی شوہر تو چلا گیا ہے ممبئی میں اور یہ آس پاس لوگوں سے نظریں بھڑائی کر رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی عورتوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، تو نبی فرماتے ہیں کہ جس کا شوہر باہر چلا گیا اور وہ عورت اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، نبی فرماتے ہیں وہ مرأۃ صالحہ ہے، یعنی وہ نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بولو سبحان اللہ۔ اور بھائیوں ایک بات تو بتاؤ، آپ لوگوں نے جہنم دیکھا ہے کیا؟ اللہ اللہ، کیوں بھائی بتاؤ بھائی، جہنم دیکھا آپ نے؟ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے جہنم دیکھنا چاہتے ہو؟ کوئی بول بھی نہیں رہا، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو وقینا عذاب النار کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ کون دیکھنا چاہے گا جہنم؟ مگر جنوری کی سردی کا مزہ تو اسے ہی آئے گا جو جون کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہو۔ واہ 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 واہ، اس لیے جنتیوں کو جہنم کی کھڑکی کھول کر کے جہنم کی تپش دکھائی جائے گی، اللہ 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 اللہ، اور دوزخیوں کو بھی جنت کی بھیری بہنی سہانی ہوا محسوس کرائی جائے گی، تاکہ سمجھے کہ علماء کیوں کہتے تھے کہ جنتیوں والے کام کرو۔ مگر پھر بھی اللہ سے توبہ، مگر آپ لوگ پھر بھی تھوڑی سی جہنم کی جھلکیاں دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر میں چلے جاؤ جہاں میاں بیوی کی آپس میں جنگ رہتی ہو، اس گھر میں چلے جاؤ، بالکل جہنم معلوم ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، کتنے مردوں نے خودکشی کر لی ہے عورتوں کے ستانے کی بنیاد پر۔ وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کی جنگ رہتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اور اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر کو دیکھ لو جہاں میاں بیوی دونوں آپس میں خوش رہتے ہیں اور بہترین گھر پروان چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ارے بھائی جب بیوی اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے تو بولو غریبی میں بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یار آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ اچھا لگت ہے نا؟ تب حضرات تو وہ گھر بڑا بہترین ہے۔ اور ایک بات میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے تین چیزیں مل جائیں۔ میکائیل بھائی توجہ چاہیں گے آپ کی، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے تین چیزیں مل جائیں۔ کون کون؟ ارے ماشاءاللہ، یہ شیبو ہے کیا؟ چلو وہ بچہ تھا، جلسہ نہیں ہوا تھا، مہندی لگا لی، اللہ معاف فرمائے، اب نہیں لگانا بھائی کوئی ہے۔ ارے یار ہاں بولو، گاؤں میں کچھ تو سدھار کرو، کہیے انشاءاللہ، بتایا کرو کہ بھائی مرد مہندی نہیں لگاتے، ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت دے، بہت خوش نصیب بچہ ہے کہ جس کی شادی کے موقع پر یہ علماء آئے ہیں، حفاظ آئے ہیں، قرآن آئے ہیں، انشاءاللہ اس ذکر میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ان کو بھی ملیں گی، ان کے پورے گھر کو بھی ملیں گی۔
इंशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में और इनकी बीवी की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इस शादी को दोनों फैमिली के लिए बरकत का जरिया बनाए। आमीन आमीन। हज़रात गिरामी अब ये कहकर के तकरीर खत्म कर रहे हैं, नबी फरमाते हैं वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिसे तीन चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या? सबसे पहला अच्छी बीवी। अच्छी बीवी जिसे मिल जाए समझ लो वो किस्मत का सिकंदर है। और दूसरी बात वो इंसान बड़ा खुशनसीब है कि जिसे अच्छा घर मिल जाए। ये बाहरी शरीयत में लिखा है। अच्छे घर का मतलब यह है कि घर भले से छोटा हो लेकिन जरूरत सब चीजें हो, पर्दे का भी एहतमाम हो, या घर तो छोटा है, घर तो बेहतर नहीं है मगर पड़ोसी अच्छे हैं। कभी कभी घर तो बहुत अच्छा होता है मगर पड़ोसी बिल्कुल जालिम होते हैं तो जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हक है, हक है। और तीसरी बात नबी ने फरमाया कि वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जिसे अल्लाह चलने के लिए अच्छी सवारी दे दे। तो अच्छी बीवी, अच्छी सवारी, अच्छा मकान, जिसे ये तीन चीजें मिल जाए नबी फरमाते हैं वो बड़ा खुशनसीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे ये तीन चीजें नबी ने फरमाते हैं वो बदबख्ती की अलामत है जिसे ये तीन चीजें न मिले। हज़ार शादी हो गई, मुबारक फरमाए, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस गांव को आबाद रखे, खुश रखे। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिर होंगे। आखिर में बस आपसे यही कहना है कि जब आपके घर में दुल्हन आती है तो फिर दुल्हन के साथ बेहतरीन सलूक करो। हमारे यहाँ भारत में जहाँ महाभारत मशहूर है वहाँ सास और बहू की लड़ाई भी बड़ी मशहूर है। जी अब बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड और बड़ी बड़ी शानदार बीवी आ जाए मगर सास और बीवी बहू की जमती नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। सास भी देखती रहती है 3-4 दिन रोटियां बनाना आती है कि नहीं। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो 5वें दिन बोली तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही क्या है, खाली मोबाइल चलाती होगी घर में बैठ के, या फ्री का के खा रही है, ठंडे एसी कूलर में रह रही है। तेरे यहाँ ये सब कुछ थोड़ी था, तुझे रोटी भी बनाना नहीं आती। खुदारा मेरी बहनों, अगर आप सास हैं तो अपनी होने वाली बहू को ताने ना दिया करो और आओ उसी को अपने नबी की सीरत से। जब मेरे नबी के निकाह में हजरत आयशा तशरीफ लाई थी तो हजरत आयशा को रोटियां बनाना नहीं आती थी तो मेरे नबी खुद आटा गूंथते थे और हजरत आयशा को रोटियां बनाना सिखाते थे। आप कहोगे हजरत मर्द कैसे रोटी बनाएगा, तो क्या होटलों में रोटी बना रही है? मर्द ही तो बना रहे हैं और औरतों से अच्छी रोटियां मर्द बना रहे हैं। तो ये कोई ऐप की बात नहीं है। अगर बहू को रोटी बनाना नहीं आता तो बहू को रोटियां सिखाओ बनाना। और मियां बीवी को मोहब्बत करने दो, ये उनका हक है। और सीखो अपने नबी से। जब मेरे नबी की हजरत आयशा के साथ शादी हुई तो चूंकि अरब के कल्चर में बड़े बड़े गिलास होते थे, जब और गिलास में पानी होता था, पानी की कमी थी अरब में, तो हजरत आयशा पानी पी करके गिलास को रख देती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब प्यास लगती तो गिलास उठाते और फरमाते आयशा तुमने कहां मुंह लगा कर पानी पिया है? जहां मुंह लगा करके हजरत आयशा ने पानी पिया होता वहीं से मुंह लगा करके मेरे नबी पानी नोश फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अरब के कल्चर में बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े होते थे। वहां की 1400 साल पहले कीमा कबाब नहीं बनते थे, बस भूना करते थे, खाया करते थे। तो गोश्त का इतना बड़ा टुकड़ा रखा होता था, हजरत आयशा उठा कर खा लेती थी और उसके बाद खाने के बाद रख देती थी। नबी उठाते और फरमाते आयशा तुमने कहां से खाया है? तो जहां मुंह लगा करके हजरत आयशा तनावुल फरमाती थी वहीं से मुंह लगा करके हमारे नबी तनावुल फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आपके नबी की सीरत। अमर जिसने अल्लाह को देखा हो उसके दिल में औरतों की मोहब्बत क्या माने रखती है? क्या बात है। मगर
मेरे नबी अपनी उम्मत को सिखाने के लिए इस तरह से फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि मेरी उम्मत के लोग अपनी बहुओं की, अपने घर में आने वाली दुल्हनों की इज्जत करें। और कभी कभी मेरे नबी मजाक भी किया करते थे अपनी बीवी से। बाज लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो बाहर तो पिट के आते हैं, मगर घर में दाखिल हो तो बीवी के सामने ऐसे आंखें चढ़ाएंगे, लगता है कि बस यही है, पहलवान आ गए हैं कोई, बाहर 10 गालियां सुन करके आएंगे और बीवी पे आकर वो गुस्से को निकालेंगे। हजरात यही वजह है, ये हदीस शरीफ है, गालिबन तिरमिजी शरीफ की हदीस है। एक सहाबी है हजरत मुआविया बिन हकीम कुशैरी, उन्होंने, गौर से सुनिएगा, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खिलाओ, जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, और जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर न मारो और उससे बुरा भला न कहो, उससे गालियां न दो और उसे तनहा न छोड़ो, मगर घर में, यानी अगर तुम्हारे साथ वो कहीं हो तो घर के अलावा उसे तन्हा ना छोड़ो। ये 5 बातें आपके नबी फरमाते हैं। और इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी कि बेहतरीन कामिल ईमान वो शख्स है कि जिसके अखलाक अच्छा हो, और तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अपनी बीवियों की इज्जत करना सीखो। तो मेरे नबी कभी कभी मजाक भी किया करते थे अपनी बीवी से। जब हजरत आयशा, एक दिन मेरे नबी, बस खत्म कर रहे हैं, एक दिन मेरे नबी के साथ में है हजरत आयशा, तो एक जंग में तशरीफ, किसी सफर में है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तारीफ भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा चलो दौड़ लगाएं। तो हजरत आयशा की उस वक्त नई नई शादी हुई थी, पतली दुबली थी, तो हजरत आयशा पर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जी जरूर दौड़ लगाएंगे। अब जब दौड़ लगाई तो हजरत आयशा आगे निकल गई, नबी दौड़ में पीछे रह गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बहुत सालों के बाद हजरत आयशा का वजन भारी हो गया। एक जंग पर गए हुए थे, मेरे नबी ने सारे सहाबा को भेजा, जाओ तुम लोग आगे चले जाओ, खूब आगे चले जाओ कि निगाहों से ओझल हो जाओ। फिर मेरे नबी ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा चलो दौड़ लगाएं। तब हजरत आयशा दौड़ लगाती हैं तो अब की बार नबी आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। तब मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ये उस दिल का बदला हो गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अपनी बीवी से मजाक करना तहजीब के दायरे में, शरीयत के दायरे में, ये भी सुन्नत रसूल है ना। मगर अगर बीवी को और शोहर को साथ में खाते हुए सास देख ले तो भाई कयामत आ जाती है। हाँ, और अगर बीवी ने, सास ने ये सुन लिया कि मेरे बच्चे ने, मेरे लड़के ने मेरी बहू को सलाम किया है, तब पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहनी, हमारा भैया तो हमारा हाथ से निकल गया, जुमा 8 दिन हुआ है अपनी महरुआ को सलाम कर रहा, बीवी का गुलाम हुई गवाह है। तो यह है शरीयत से दूरी का नतीजा कि हमने सलाम करने को भी बीवी की गुलामी पर महमूल माना है। यह शरीयत से दूरी का नतीजा है। यानी अगर आज शौहर अपनी बीवी को सलाम कर ले तो लोग ये समझते हैं ये कि बीवी का, जो शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। आप चाहे जो समझो, मगर मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि मेरे नबी जब अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा। क्या कहने, बहुत उम्दा प्रोग्राम। बस तकरीर खत्म है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब अमल करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे ना अमल?
इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इन माँ बहनों से बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज की शादियों में जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात है मुसलमानों के घरों में, इधर देखिए, जो मुसलमानों के घरों में जो सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात है वो ये है कि शादी के मौके पर हमारे घरों में बेपर्दगी बहुत ज्यादा होती है। 60 साल की औरतें, 50-50 साल की औरतें जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, मगर ये लाली पाउडर लगा करके ऐसा मुंह बनाने बैठी है कि शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही। अब तो सुनते ब्यूटी पार्लर निकला है, वो शक्ल ही को बदल देते हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बुढ़ियां हो गई हैं 60 साल 50-50 साल की औरतें, मगर बेटे की या पोते की शादी है तो पूछो मत इनके मेकअप का। सिर्फ दिसंबर की सर्दी है मगर ये आधी आस्तीन के कपड़े पहन नहीं है। और अगर मौलाना कबीर साहब मस्जिद के मेंबर से कहे कि बहनी पर्दा करो तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, ये पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। मेरी बहन, तुम्हारी इस बेपर्दगी ने हमें शर्मिंदा करा दिया है। पूरे भारत में तुम्हारी इस बेपर्दगी की वजह से शर्मिंदा हो गए हम। पिछले 2 साल से हिजाब का मसला चल रहा है अपने मुल्क में, तुम्हारे पर्दे पर गैरों की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया यही चाहती है कि तुमको नंगा सर देखें, यानी जिस तरह से दूसरी कौमों की बेटियां नंगे सर रहती हैं ऐसे ही वो तुम्हें देखना चाहती हैं। खुदारा तुम कनीज़ फातिमा हो और उस फातिमा की कनीज हो कि जिनकी जब मौत विसाल होने वाला था तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को रात में उठाना, दिन में ना उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, चूंकि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। और अगर हम आपको समझाएं कि भाई अपनी बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहा करो, उनसे कहो कि वो पर्दा करें, तो आपके भी दिमाग खराब हो गए। आप कहते हैं मौलवी साहब आपको क्या पता, मैं अपनी बीवी के बारे में आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी तो बिल्कुल दिल की साफ है, मेरी बीवी तो, मेरी बेटी तो दिल की बहुत साफ है, मेरी बीवी, मेरी बहन तो बहुत नेक है। इस तरह की तावीलात आप क्या करते हैं? तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिरी बात है, दिल की तख्ती पे लिख लेना, क्या आपकी बीवियों के दिल, मेरी बीवी के दिल, आपकी बेटियों के दिल, आपकी बहनों के दिल, मेरी बहन बेटियों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ होंगे? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी हैं और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना सहाबी थे, वो देख नहीं पाते थे, वो हुजूर के घर की तरफ आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे जब 1400 साल पहले हमारा नबी एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की आपकी ये बहन बेटियां क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? आज जरूरत इस बात की है कि पर्दे का ख्याल रखो और इतने पर्दे का एहतमाम करो कि दुनिया भूल भी जाए कि इस्लाम में पर्दा नहीं है। इस्लाम, दुनिया ये भूल जाए कि इस्लाम में पर्दा, वो ये जो सोचते हैं कि इस्लाम में पर्दा नहीं है, इसको वो भूल जाए और उनको समझ में आ जाए कि पर्दा कितना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस माँ का बेटा हूँ, आपकी माँ, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदम के नीचे है, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल मेरे बाप के निकाह में रही, 1.5 किलोमीटर मेरा खेत है, पूरी
जिंदगी में शायद एक या दो बार मेरे वालिद साहब के साथ मेरी माँ मेरा खेत देखने गई थी। गरीबी के जमाने में गांव की और औरतें मजदूरी करती थी। चूंकि मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बेपर्दा रहना ये बुरी बात है। मजदूरी कोई खेतों में जाएंगी औरतें तो जाहिर से बात है बेपर्दगी होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ ने गरीबी तो बर्दाश्त की है, लेकिन बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ ने दो ही बेटों को जन्म दिया, मगर अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बना दिया है। बस यही कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। मजदूरी करेंगी, 300 रुपया कमाएंगी और घर में रहेंगी, नमाज पढ़ेंगी, दुआएं करेंगी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे नस्लों की किस्मत सवर जाएगी, नस्लों के मुकद्दर सवर जाएंगे। पर्दे का ख्याल रख मेरी बहन, हमारी इज्जत तेरे हाथों में महफूज होना चाहिए। और इतना पर्दा करो कि तुम्हें देख करके तुम्हारे आस पड़ोस में जो गैर मुस्लिम औरतें रहते हो वो भी पर्दे का एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत की रोशनी में अपने सारे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजम मिकाइल जनाब शिबू को, अजीजम शिबू मिकाइल भाई और इस बस्ती के तमाम लोगों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।